So welcome. હવે નહીં એક કલાક પછી હવે ચાલુ થઈ ગયો. ચાલો અહીંયા મૂકી દો. ओके एग्जाम्पल लेते हैं नहीं मिल रहा है नीचे जा रहा है. So today we are going to learn about the column chromatography. Column chromatography. You have knowledge about the paper chromatography, thin layer chromatography. It's a column chromatography. Now it's a big term. Column chromatography is a big term. It encloses many variation of it. Say for example, gel filtration column chromatography, affinity chromatography, ion exchange chromatography, even high performance liquid chromatography is also kind of column chromatography. So today in this column chromatography, basically what we are at this level studying the low pressure column chromatography. So how does it proceed? Basically, actually it's a separation technique. It's a very basic fundamental separation technique where you actually separate a different fraction of extract. Say for example, you have taken some flour, you have extracted, and you want how many things are there. Say for example, you take neem leaves and you crush it and carry out the filtration process as I explained earlier. Make out the filtrate, and then you want to analyze how many things are there in that particular neem leaves. In that case, you require column chromatography because you need to separate different fraction of this what you call extract. So let's learn in detail how does it operate. Basically, how the fundamental the technique operate. So basically, if I say principle wise, so it's a separation technique, and here the separation is between the what you call separation is basically liquid solid separation. Liquid solid. Here the separation is liquid solid separation. Just one second. So the separation is liquid solid separation. On that is a fundamental. So solid, the solid is your solid will be your stationary phase. जहाँ पे आपके solid है वो क्या होगा? Stationary phase. And the liquid is your solvent, that is the mobile phase. So now we have liquid phase and mobile phase. Same thing you had in your paper chromatography, but the stationary phase is here actually packed in a column. The stationary phase here is packed in a column. So now new term for what do you mean by the column? You simply take your burette as a column, say for example. So what actually, how does it work? Before going that detail, the column है burette है, उसको क्या किया जाता है, उसमें आपका स्टेशनरी फेज फॉर किया जाता है और ब्यूरेट के अंदर पूरा स्टेशनरी फेज को बनाया जाता है, रखा जाता है और उसके ऊपर मोबाइल फेज फॉर की जाती है. सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड और आल्सो अप्लाइड ऑन टू दैट कॉलम. तो मोबाइल फेज में तो अब क्या होगा, जैसे स्टेशनरी फेज में आपने सॉरी पेपर क्रोमेटोग्राफी में जैसे और टीएलसी में जैसे प्लेट पे या पेपर क्रोमेटो वॉशमैन फिल्टर पेपर पे जैसे सेपरेशन हो रहा था, उसमें भी क्या था, दो चीजों के लिए अट्रैक्शन था, या तो पेपर के लिए था या तो जो मोबाइल फेस मूव उसके लिए था. तो यहाँ पे भी एक ही नेम ट्री के अंदर विटामिन सी भी होगा, उसी के अंदर और भी कंपोनेंट्स होंगे, पॉलीफिनॉल्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी. तो हर चीज का एक अपना अट्रैक्शन है, किसके साथ, स्टेशनरी फेस के साथ भी एंड मोबाइल फेस के साथ भी. ओके, सपोज द सब्सटेंस हैज टू मच एफिनिटी फॉर दिस, से फॉर एग्जांपल सिलिका. सिलिका है
तो उसके साथ उसका अफेक्शन ज्यादा है। तो और उसका जो एल्यूएंट है, जो सोलवेंट है, उसका एल्यूएंट भी कहते हैं, तो सोलवेंट के साथ उसका उतना नहीं है, तो वो क्या करेगा, कॉलम में उतना डिस्टेंस काटेगा ही नहीं, कॉलम के नजदीक के जोन में ही रहेगा। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में जिस स्पॉट का ज्यादा अफेक्शन नहीं था, वो बहुत ट्रैवल नहीं करता, इसी तरह पे जो स्टेशनरी फेज है, वो कॉलम में ऊपर के भाग में ही रहेगी। तो यहाँ पे अगर जिसका अट्रैक्शन मोबाइल फेज में ज्यादा है, जो ज्यादा सोलवेंट के साथ सॉल्यूबल, उसको ज्यादा ट्रैवल करेगा और जल्दी जल्दी कॉलम को पास करके आपका फ्रैक्शन कलेक्ट हो जाएगा। ये जो प्रिंसिपल मैं फिर से आऊँगा, फिर से जब मैं ये प्रिंसिपल आपको समझ में तब आएगा जब पूरा वर्किंग समझ लोगे। ठीक है? तो फिर जैसे हम जाते हैं हाउ डज़ इट ऑपरेट? आपको क्या चाहिए? मटेरियल वेक्टर क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट क्या है? तो आपको क्या चाहिए? मैं सिंपल से आपको बता रहा हूँ क्या हमें चाहिए। तो हमें आपको इसमें चाहिए कि हमें एक्सट्रैक्ट बनाना है। हमें एक्सट्रैक्ट हमारा रेडी है। से फॉर एग्जांपल हम ऐसे कोई एक्सट्रैक्ट सिंपल आपको समझ में इसलिए मैं ऐसा समझाता हूँ कि आपका जो एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर मान लो कि 2 कलर के कंपाउंड है, तीसरा फोर्थ कुछ है ही नहीं। उसके अंदर समझ लो कि कंटेंट है, एक वायोलेट कलर का कुछ सब्सटेंस है और दूसरा येलो कलर का सब्सटेंस। ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं, अभी आपका एक्सट्रैक्ट में ये दोनों अलग से नहीं दिख रहे हैं आपको। लेकिन जैसे ही सेपरेशन होगा आपको ये दोनों अलग-अलग दिखने लगेंगे। समझाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए? सॉल्यूट्स टू बी सेपरेटेड, मतलब जो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट्स टू बी सेपरेटेड, दैट मीन्स लाइक से फॉर एग्जांपल नीम एक्सट्रैक्ट, एनी फ्लावर एक्सट्रैक्ट। So you does before proceeding for the column chromatography, you need to carry out the extraction process of the flower component or the neem component, neem leaves component. Second, what you require, biorate or column itself. Nowadays in market, commercial column are available, but here we will prepare our own column. Then what you require, stationary phase. What can be used as stationary phase? So stationary phase can be your silica, alumina. These are the even extract molecules sometimes. But mainly silica and alumina are mainly used in column chromatography, low pressure column chromatography. Now, this is the stationary phase. So we need to make this silica, we need to fill our column, that is our biorate with the silica. It's a silica powder is available, commercially it is available. Then we require sand, requirement. What we require, stationary phase we require one, then we require sand. Been separated which are solid, इसको हम यानी डिफरेंट प्रोटोकॉल में डिफरेंट सोलर सिस्टम होते हैं। तो जैसे कि आपका जैसे कि बेंजीन मिथेनॉल का एक हो सकता है, बेंजीन मिथेनॉल का 2:1 हो सकता है। बहुत सारे एन नंबर ऑफ सोलवेंट सिस्टम आपके साथ हो सकते हैं। तो बेंजीन जो है उसका मान लीजिए 20:1 आपने ले लिया, 20:1 प्रोपोर्शन में, सॉरी आपको शायद दिख नहीं होगा, मैंने नीचे लिखा है बेंजीन, बेंजीन टू बेंजीन एंड मिथेनॉल 20:1 रेशियो में नीचे लिखा है। सॉल्यूट का रिक्वायरमेंट क्या है? स्टेशनरी फेज है, सैंड है, सॉल्यूट है, बेंजीन, मिथेनॉल, सोलवेंट, सोलवेंट सिस्टम है, मोबाइल फेज है। इसको हम दूसरा तो मोबाइल फेज इज इक्वल टू योर सॉल्वेंट और इज इक्वल टू योर, चलो यही दो सिस्टम रखते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं करना। हाँ, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली ये वर्ड यहाँ पे कॉलम प्रोडक्ट ये वर्ड यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे एल्यूशन हो रहा है, इसलिए एल्यूट इसको कहते हैं, तो ये वर्ड यूज करते हैं। मोबाइल फेज इज इक्वल टू सॉल्वेंट और इज इक्वल टू एल्यूट, ये तीन वर्ड आप यूज करेंगे मोबाइल फेज के लिए। मतलब मोबाइल फेज एक सॉल्वेंट है, एल्यूट है। एक एग्जांपल मैंने दे दिया बेंजीन टू मिथेनॉल, एन हेक्सेन भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, एसीटोन भी आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड आपको क्या सेपरेट करना है, उसका बायोकेमिस्ट्री क्या है, उसका केमिस्ट्री क्या है। हम यहाँ पे बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे बात कर रहे हैं। ओके, तो अब आपको ये सारी आपकी मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी। अब आप प्रोसीड कैसे करेंगे? हाउ विल यू प्रोसीड विद दिस कॉलम क्रोमेटोग्राफी? तो इसमें हमें प्रोसीड कैसे करना है वो हम बता देते हैं। सबसे हम क्या पहले क्या करेंगे, हम लेंगे एक
सबसे पहले हमें सोलवेंट सिस्टम बनानी है। सोलवेंट सिस्टम हमने लैब में बना लिया। हमने लैब असिस्टेंट को कहा चलो भाई हमें बेंजीन इस टू मिथेनॉल 20:1 बना के दे दो। उन्होंने दे लिया। 20 ml मिथेनॉल लिया, 1 ml 20 ml बेंजीन ले लिया, 1 ml मिथेनॉल ले लिया। हो गया हमारा सोलवेंट सिस्टम रेडी। ठीक है, अब हमें दूसरा क्या चाहिए? अब हमें चाहिए स्टेशनरी फेज बनाना है। तो स्टेशनरी फेज बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें करना है स्लरी बनाना है। नाउ द स्टेशनरी फेज, यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज जो होता है वो दो तरीके से बनाया जाता है, ड्राई प्रिपरेशन और वेट प्रिपरेशन। ड्राई प्रिपरेशन और वेट। ड्राई प्रिपरेशन में क्या होगा? डायरेक्टली आप सिलिका को डायरेक्टली ही उसमें पॉर कर दो कॉलम के अंदर। और वेट प्रिपरेशन में क्या होता है? यहाँ पे हम स्लरी बनाएंगे। स्लरी मतलब कि लपसी जैसा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे कि थोड़ा सा हमने सिलिका लिया, सिलिका ले लिया और सिलिका के साथ हमने उसमें पॉर किया मोबाइल फेस जो हम यूज करने वाले वही हमने पॉर कर दिया सिलिका और उसका हमने पॉरिंग किया। उसमें हमने डाला क्या? हमने क्या पॉर किया? मिथेनॉल, आपका सोलवेंट सिस्टम हमने डाल दिया और उसका हमने स्लरी बनाया। ओके, तो ये हमको स्विच लेट इट फॉर 5 or 10 मिनट। ठीक है, और उसको थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में शेक करते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे? हमारा कॉलम प्रिपेयर करने की तैयारी करते हैं। तो कॉलम क्या है? ब्यूलेट जैसा है ये मान लो। ये बुलेट जैसा हमारा कॉलम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका टैप होगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक कॉटन लेना है, थोड़ा कॉटन जो आप कान में लगा देते हैं कई बार ठंडी के दिनों में, तो ऐसा कॉटन सा लेना है और कॉटन वूल को आप फॉर्सेप की मदद से आप यहाँ पे कॉटन वूल लगा दीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा कॉटन लगा दिया आपने। ठीक है, अब आपको क्या करना है? नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्टेप? अब यहाँ पे आपने जो स्लरी अभी हमने तैयार किया जिसमें हमने अल्को मिथेनॉल बेंजीन इज टू मिथेनॉल 20:1 जो हमने बनाया है आज के लिए हमारा, तो वो अब हमने वो स्लरी जो है अब हम यहाँ पे पॉर करेंगे। लेकिन उसके पहले कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कई लोग ये करते हैं और करना भी चाहिए। हम एक स्टेप और इन्वॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम थोड़े से सैंड पार्टिकल सैंड सैंड पार्टिकल ये थोड़ा क्या कहते हैं हाइजीनिक सैंड होता है। ऐसे नहीं कि हम मिट्टी उठा के ले आए ले लिया, ये कॉमर्शियली हमें मिलती है। एसिड वॉश होती है, इसमें कोई बैक्टीरिया कुछ होता नहीं है, एसिड वॉश सैंड होती है ये। तो ये सैंड हमने यहाँ पे ले लिया, ये हो गया हमारा सैंड का लिया। अब इसके ऊपर हम सिलिका का कॉलम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब इसमें हमने जो स्लरी बनाई है, घोल बनाया है, किसका? मोबाइल फेस और सिलिका का 10% 20% डिपेंड ऑन योर प्रोटोकॉल। उसके हिसाब से उसका पोर साइज भी डिसाइड होगा। तो जो आपने स्लरी बनाया है, तो वो आप यहाँ पे स्लरी को क्या करोगे? पॉर करोगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का चॉक यूज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया सिलिका मिक्स्ड विद द वाटर और नॉट वाटर, आपका सोलवेंट सिस्टम। अब आप क्या करेंगे? यहाँ से कॉक टैप थोड़ा ऑन कर दीजिए। तो ये क्या होगा? जितना भी उसके अंदर घोल था, जितना भी सोलवेंट था वो निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सिर्फ जो सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे सिलिका के वही आपस में रहेंगे। आपका एक्सेस जो सोलवेंट था वो निकल गया। कीप इट फॉर 10 मिनट। ये आपका प्रिपेयर तैयार हो गया। ऊपर के भाग में अभी थोड़ा आपको सोलवेंट दिखेगा। मेक श्योर कि देयर इज नो बबल। तो अभी आपका क्या थोड़ा सोलवेंट ऊपर आपको दिख रहा है। फिर आपका पूरा व्हाइट कलर का सिलिका का लेयर दिख रहा है। फिर पूरा आपका कॉलम रेडी हो गया। अगर मान लीजिए आपका प्रिपरेशन ड्राई है, तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली आपका सिलिका का पाउडर इसे भर दो, तो ये ग्रीन कलर का और कंडेंस सिलिका का पाउडर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राई वेट प्रिपरेशन भी हो सकता है, वेट प्रिपरेशन भी हो सकता है। मेनली वेट प्रिपरेशन ज्यादा होता है क्योंकि उसमें रिजोल्यूशन अच्छा मिलता है हमें। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉलम पैकिंग। अब हमें कॉलम पैकिंग के ऊपर और क्या करना है? फिर से हमें सैंड का एक और लेयर बनाना है। ये सैंड क्या करती है? ये कॉलम को पैक रखती है, इवापोरेशन नहीं होने देती, एक थोड़ा प्रेशर भी मेंटेन रहता है। और जो जो इसके ऊपर अब हम जो अप्लाई करने वाले हैं सब्सटेंस टू बी अप्लाई, वो अच्छे से एक लेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 वर्जन है। कुछ लोगों का कहना है कि सैंड का लेयर बाद में डालो आफ्टर द अप्लाइंग द सॉलिड, और कुछ लोगों का कहना है कि सैंड पहले डालो। व्हाटएवर द वे,
यहाँ पे सैंड है, बीच में सिलिका है, फिर से सैंड है, उसके लिए ग्लास फूल है, एक्स्ट्रा जो सोलवेंट था स्लरी का वो बाहर ले लिया है। तो ये अभी हमारा सिनेरियो है। तो हमने अभी क्या कर लिया, एट दिस स्टेज वी हैव प्रिपेयर्ड द कॉलम, वी हैव केप्ट आवर स्टेशनरी फेज रेडी फॉर द सेपरेशन। Clear? Now what we are doing? Now we are applying our solute molecule to be separated. अगर इसको मैं TLC के साथ इसको अगर मैं पेपर क्रोमेटोग्राफी या तुलना करूं तो हमने ये क्या स्टेप किया, हमने पेपर को बना लिया, रेक्टेंगल में काट लिया, हमने पेपर के ऊपर लाइन बना दिया, उतना स्टेप मतलब स्टेशनरी फेज हमने तैयार किया। यहाँ पे भी अपने हमें हमारा स्टेशनरी फेज स्टेज तक तैयार कर लिया है। Now what we are going to do? Now we are going to apply molecule to be separated. We are going to apply molecules to be separated. How? तो इस बार हमें क्या करना है, टेक अ पाइपेट, एक पाइपेट लेनी है और एक ड्रॉपर, टेक अ ड्रॉपर और टेक अ पाइपेट। अगर पाइपेट या ड्रॉपर से आपको क्या करना है, जैसे कि आपने सॉलिड मतलब जैसे बोला कि नीम का एक्सट्रैक्ट है आपका या कोई कलर कंपोनेंट है जिसमें वायोलेट कलर कंपोनेंट है, तो वो कलर कंपोनेंट जैसे कोई पिगमेंट्स हैं, जैसे आपने कोई फ्लावर क्रश करके लाए तो आपको पूरा वायोलेट कलर का दिख रहा है, तो वो जो पूरा घोल बना के लाए हैं, आपने उसको घोल भी आपको मोबाइल फेस में ही बनाना है। थोड़ा-सा जो घोल बनाया है आपने, तो सोलर को आपको थोड़ा डाइल्यूट करना है मोबाइल फेस में। डाइल्यूट कर लिया, अब आपको उसको ड्रॉपर से या पाइपेट से ले लेना है। तो अब मेरे हाथ में क्या है, पाइपेट है। वो पाइपेट मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्यूरेट की साइड पे से पाइपेट को मैं इस तरह से छोड़ रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ थंब को, तो धीरे-धीरे वो साइड वॉल से क्या होगा, एक लेयरिंग होते हुए यहाँ पे सेटल हो जाएगा रेत के ऊपर। और मान लीजिए अगर आपने रेत बाद में डाल रहे तो यहाँ पे आपका पूरा लेयर आ जाएगा और रेत ऊपर आ गई। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो मान लीजिए कि ये मेरा तो ये मेरा हो गया, ये एप्लीकेशन हो गया। तो यहाँ पे अब इस लेयर पे मेरा क्या है, यहाँ पे मैं 2 कलर की चॉक यूज़ कर रहा हूँ। ऑरेंज और येलो मैंने मिक्स हो गया यहाँ पे। मान लीजिए मेरे अंदर ये 2 कंपोनेंट है। So now what we have applied the solute to be separated here. Okay. This is also called adsorbate and this is absorbent. है ना? आपकी जो प्रैक्टिकल के लिए मैंने दिया उसमें ये टर्मिनोलॉजी है। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? ये तो होगा प्रिपरेशन। अब यहाँ से प्रिपेयर यहाँ से सेपरेशन हमें स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? अब हमें कंटीन्यूअसली हमें मोबाइल फेस रन करनी है, उसको देना है। जैसे आपने सोलन में रख छोड़ा था पेपर को, तो वो पेपर असाइन होता है, यहाँ पे कोई असाइनिंग तो होने वाला नहीं। अब यहाँ पे अगर आप विल्सन वॉकर की बुक ले लो या कोई भी अच्छा रेप्यूटेड बुक ले लो, तो उसमें बहुत प्रिकॉशंस दिए गए हैं। ये पूरा मैं आपको बहुत ही फंडामेंटल वर्जन सिखा रहा हूँ। आप कोई भी फार्मा कंपनी में जाओगे तो ये कॉलम कंप्यूटर में चलती रहती है, बड़े-बड़े कॉलम में भी सेपरेशन होता रहता है, छोटे कॉलम में भी होते रहते हैं। तो वहाँ पे कॉलम में आप जब सॉल्वेंट पोर कर रहे हो, तो उसमें भी बहुत ध्यान रखना है कि आपका क्या होगा, मान लीजिए आपने कांस्टेंट सॉल्वेंट आपने रखा है ऊपर, मान लीजिए मैं रिजर्वॉयर लगा देता हूँ कि यहाँ पे एक रिजर्वॉयर है, जिसके अंदर पूरा सॉल्वेंट भरा हुआ है, ठीक है? ये एक रिजर्वॉयर मैंने यहाँ पे रख दिया। ये एक टैंक है, इसके अंदर मान लीजिए ये रिजर्वॉयर है, इसके अंदर पूरा मेरा सॉल्वेंट सिस्टम है। इस तरह से बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एक रिजर्वॉयर है, इसके ऊपर मैंने पूरा सॉल्वेंट सिस्टम इसमें मैंने पूरा सॉल्वेंट रखा हुआ है, रिजर्वॉयर है, इसके अंदर पूरा टैंक है मान लीजिए और इसमें से पूरा सॉल्वेंट जाते रहता है। अब इसके ऊपर भी मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट ऐसे है कि इसमें प्रेशर अप्लाई कर सकता हूँ। तो प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे जो रिजर्वॉयर है इसमें से जो कंटेंट है, सॉल्वेंट है, वो यहाँ पे जाता रहेगा, कॉन्टिन्यूअसली जाता रहेगा कॉन्टिन्यूअसली। अब ये जो पूरा यहाँ पे सेटअप मैंने बनाया है, ये पूरा मैं इसको ऑटोमेटेड भी कर सकता हूँ जो लेटेस्ट वर्जन में होता है, या अगर मैं इसको हैंड से कर रहा हूँ तो कई बार आपको सिंपल चीजें करनी होती है तो आपको ये प्रेशर वगैरह कई कई बार थोड़ी-थोड़ी देरी में आप प्रेशर बनाए रखते हो, थोड़ा प्रेशर कम हुआ है तो देते हो, क्योंकि चीजें क्या होती है, मूव नहीं होती। जैसे आप डिब्बे में अपने चावल भरे हैं, तो नहीं जा रहा है, आगे मुँह नहीं हो रहा, तब धक्का दोगे। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको थोड़ा धक्का भी देना पड़ता है, कई-कई बार पंप से देना पड़ता है। दूसरा, कई बार यहाँ पे उसमें बुक्स में लिखा होगा पाओगे कि जो सॉल्वेंट है, यहाँ से यहाँ पे मूव हो रहा है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का कंटेंट जब कम होता है, तो भी जो आपका स्टेशनरी फेस है या आपके सॉलिड टू बी सेपरेट है, उनका भी प्रेशर का लेवल कम होता रहता है। क्योंकि अगर आपका कंटेंट रिजर्व हुआ, कंटेंट कम हो गया, तो उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, वो भी कम हो गया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए भी आपको यहाँ पे प्रेशर देना है। तो बेटर है कि जब ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, तो उसमें रिजर्व कंटेंट कितना है, प्रेशर कितना है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है।
मैनुअल सिस्टम में तो हमें ध्यान रहना पड़ता है, ठीक है, लेकिन हम वो डिटेल उतना नहीं जा रहे, ठीक है। तो अब आपको मैंने क्या दिखाया कि यहाँ पे आपका एक मोबाइल फेस का आपने रिजर्वॉयर रख दिया है। मान लीजिए आप और सिंपल वे से करना चाहते हैं, तो ये सब हटा दो। आप यहाँ पे पॉर कर रहे हो, आपने ले लिया बीकर और आप पॉर करते जा रहे हो सोलर सिस्टम, और यहाँ तक आपका आपने भर दिया है, यहाँ तक आपने पूरा भर दिया उसको। तो अब आपका सिनेरियो क्या हो गया? अब आपका सिनेरियो ये है कि आपके पास कॉलम है, कॉलम के नीचे आपने रुई रख दी थी, उसके ऊपर आपने सैंड लगा दिया, देन you have filled, you have actually poured the silica solution slurry, and then silica is ready there, so your stationary phase was ready, then you applied sand, and then you applied your solute to be separated, then you are applying mobile phase, you're pouring mobile phase, that too आप डालते रहिए, या तो एक रिजर्वॉयर रख छोड़िए और उसका प्रेशर मेंटेन करते रहिए, ठीक है। अब आप प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, रिजर्वॉयर रख छोड़ा है, तो क्या होगा, कॉन्स्टेंटली इसके अंदर चीजें आती रहेंगी। अब आपको क्या करना है, ये एक पूरा एक सिस्टम बन गया है, और यहाँ से आपको जो यहाँ का टैप है उसको खोल देना है, और नीचे आपको क्या रखना है, अ, आपको दिख रहा होगा, हाँ, नीचे आपको यहाँ पे रखना है फ्रैक्शन कलेक्टर के लिए टेस्ट ट्यूब मान लीजिए, टेस्ट ट्यूब। तो अब क्या कर रहे हैं, अब आप क्या होगा, इसको मैंने अभी स्टार्ट किया पोर्ट करना, ये मान लीजिए येलो और ऑरेंज कलर साथ साथ में है। अब क्या होगा, थोड़ी थोड़ी देर में आपका ये ऑरेंज कलर और येलो कलर अभी आपको साथ में दिख रहा है, तो थोड़ी देर के बाद सिनारियो क्या होगा पता है, मान लीजिए ये ऑरेंज कलर का जो कंपोनेंट है, येलो कलर का कंपोनेंट, ये अभी एक ही कलर है, ऑरेंज और येलो, मान लीजिए अभी आपको कोई और ही कलर दिख रहा है, लेकिन ये दोनों जो अभी आपको कलर दिख रहा है, उसके अंदर ये दोनों चीजें ऑरेंज और येलो, लेकिन अभी आपको सेपरेटली दिख नहीं रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, येलो कलर का कंपाउंड है, उसका मान लो सोलवेंट के साथ एफिनिटी ज्यादा है, सिलिका के साथ नहीं है, तो वो जल्दी मूव करेगा और यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक पहुंच गया आपका कलर कंपाउंड, और वो जो येलो कलर का ऑरेंज कलर कंपाउंड है वो यहाँ पे है। तो 5 मिनट बाद ये है आपका 5 मिनट बाद का स्टेटस। 5 मिनट बाद का स्टेटस आपका क्या मिला आपको, फॉर एग्जाम्पल आपका येलो कलर का कंपोनेंट यहाँ तक मूव हो गया, और अब यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि ये चीज तो यहाँ पे आ गई। आप कांस्टेंट लेते रहिए। अब आपका लग रहा है इतना मूव होने के बाद क्या हुआ, अभी अब आपको क्या चाहिए, एक्चुअली जो हुआ ये येलो कलर का कंपाउंड में टेस्ट ट्यूब में आ जाए तो उसका फर्दर एनालिसिस करो। तो ये आपका कब आएगा, तो आपको उसको और 5 मिनट का वेट करना है कि नीचे और उतरे और नीचे उतरे। अब मान लीजिए कि ये ऑरेंज कलर का, मान लीजिए कि आपको एक टेस्ट में तो उससे कुछ नहीं मिला, दूसरी में कुछ नहीं मिला, हर एक मिनट में आप टेस्ट में कलेक्ट करते रहे कंपाउंड को। यहाँ पे जैसे येलो कलर कंपाउंड आया, यहाँ पे जो नीचे और 7-8 मिनट के बाद येलो कलर कंपाउंड आया, तो आपने ये टेस्ट ट्यूब में ये येलो कलर के कंपाउंड को ले लिया और साइड में अपने स्टैंड में ले लिया। फिर आप 10 मिनट का वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा 10 मिनट बाद सिनेरियो क्या होगा कि आपका येलो कंपाउंड तो पूरा उसमें आ गया फ्रैक्शन। अब आपका 10 मिनट बाद क्या हो जाएगा कि आपका ये येलो कंपोनेंट है, येलो कंपाउंड तो पूरा नीचे आ गया, अब आपका जो ऑरेंज कलर था वो कहीं पे यहाँ पे आ गया, लेकिन आप वेट कर रहे हो, लेकिन अब वो उतर ही नहीं रहा। उसका एफिनिटी अब इतना स्ट्रांग हो गया कि अब वो उतर नहीं रहा, जितना एल्यूट होना था वो यहाँ पे हो गया। तो कई बार क्या करते हैं, अगर मैं इसका कंसंट्रेशन, टोलरेंस सिस्टम जो है उसका कंसंट्रेशन एक ही रहूं पूरे एक्सपेरिमेंट में, इसको चेंज ना करूं, तो that mode is called the isocratic, that will call the isocratic separation, and if I change that solvent, then it's called the differential, that it will call differential separation। तो अब यहाँ पे मैं डिफरेंशियल सेपरेशन करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अब यहाँ पे स्टक हो गया है, इसका मतलब ये हो गया कि ये एल्यूट है सोलवेंट पावर का, इसका ऑप्टिमम हमने यूज कर लिया, अब इसके बस की बात नहीं है इसको सेपरेट करना। मैंने यूज किया था बेंजीन, एंड मिथेनॉल, अब मैं उससे भी स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी वाला मॉडल यूज कर रहा हूँ। अब वो पोलैरिटी क्या है केमिस्ट्री में, वो आपको समझ के लाना है। व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सोलवेंट, वो आप थोड़ा गूगल कर लीजिए तो आपको समझ में जल्दी आएगा। तो अब मैं उससे भी हायर एल्यूटिंग पावर का, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उससे भी हायर एल्यूटिंग पावर का सोलवेंट ला रहा हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, भाई तू हट जा, ये तेरा काम खत्म हो गया, अब बेंजीन को मैंने हटा दिया, अब मैं दूसरा उसमें ला रहा हूँ सोलवेंट, अब वो है मेरा मान लीजिए क्लोरोफॉर्म। तो ये मैंने रिजर्व हटाया, दूसरा रिजर्व फिट कर रहा हूँ, वो है क्लोरोफॉर्म। जैसे ही क्लोरोफॉर्म लाया उसके साथ इसकी बहुत अच्छी बनती है ऑरेंज कलर के कंपाउंड की, तो वो क्या हो गया, वो बहुत जल्दी से वो ऑरेंज कलर का कंपाउंड भी नीचे चला गया।
वो भी आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एल्यूएंट को भी चेंज करते रहा। तो अगर आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट हैं और बहुत सारे, मैं 2 कलर का एग्जांपल दिया, आपके पास 5 से 7 कलर के अलग-अलग जॉइंट पे कंपोनेंट हैं और 1 घंटे तक के बाद भी वो स्टक ही रहते हैं, मूव नहीं हो रहे। तो आप क्या कीजिए, आप पोलैरिटी वाले अलग-अलग पोलैरिटी वाले कंपोनेंट डालते रहिए सॉल्यूशन, तो वो सेटल होते जाएंगे, अलग फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, सिनेरियो क्या मिला मुझे यहाँ पे कि 5 मिनट बाद मुझे येलो कलर का कंपाउंड मिल गया, 7 मिनट बाद मुझे कुछ नहीं मिला, अलग-अलग फ्रैक्शन में लेता रहा, मुझे कोई कलर कंपाउंड नहीं मिला। 12वीं मिनट पे या 15वीं मिनट पे मुझे ऑरेंज कलर का जो कंपोनेंट था वो भी मिल गया। तो अब मेरे पास येलो कलर कंपोनेंट है और ऑरेंज कलर कंपोनेंट है। मेरा टेक्निक बहुत ईज़ी है, अगर ये मेरा कंपोनेंट जो है वो कलर्ड कंपोनेंट है तो। मान लीजिए मैं और सिंपल सा एग्जांपल दूँ, आपने मार्केट में से लाके जो आती है इंक की इंक, ब्लू कलर की और रेड कलर की इंक इकट्ठा कर दी है और वो आप सेपरेट कर रहे हो कॉलम कमरे से, तो पहले तो इनिशियल तो दोनों मिक्स हो गया, लेकिन आप इसमें भी पॉसिबल है कि आप इंक और रेड कलर सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक बहुत फंडामेंटल सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो अगर कलर कंपोनेंट है तो बहुत ईज़ी है, लेकिन सर अगर कलर कंपोनेंट नहीं है, हमें पता नहीं इसका कलर क्या है, तो कहाँ, कब, क्या सेपरेट है हमें पता नहीं, हम तो ब्लाइंडली हर फ्रैक्शन को सेपरेट कर रहे हैं, हर मिनट में उस टेप में जो-जो आ रहा है, मैंने 100 टेस्ट ट्यूब मेरे टेबल पे जमा है, उसमें 1 मिनट के बाद का, 5 मिनट बाद का, 10 मिनट बाद का, 12वीं मिनट पे 12वीं, साढ़े 12 मिनट का, 13 मिनट का सब कंपोनेंट है, लेकिन सब मुझे कलरलेस है। पता नहीं सर, 1.5 घंटे से मैंने रन किया, क्या-क्या है उसमें पता नहीं। तो क्या होगा? तो अब आपको उसके लिए नेक्स्ट, मैंने कहा ना ये सेपरेशन की फंडामेंटल टेक्निक है। तो अब आपको उसके लिए फर्दर एडवांस टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। आप मान लीजिए उसको ले जाते हैं, आपको चाहिए कि आप जानना चाहते हैं कि हर फ्रैक्शन, पूरा मेरा एक्सट्रैक्ट तो रन आउट हो गया, अब इसमें आपको जानना है कि हर चीज़ में क्या है, तो आप उसके लिए हर फ्रैक्शन में से सैंपल लीजिए और उसका क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कराइए, कंपोनेंट जानिए, उसके स्ट्रक्चर जानिए। एक ये है, बहुत महँगा पड़ेगा आपको, बहुत एफर्ट लगेगा, लेकिन सारे कंपोनेंट आपको पता चल जाएगा कि भई नेम के एक्सटेंट में कौन-कौन सी चीज़ें हैं। दूसरा, आप कर सकते हैं कि आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास दूसरा होता है, भाई ऑटोमेटेड में क्या होता है, ऑटोमेटेड चीज़ों में बात करूँ तो हर हर फ्रैक्शन के टाइम पे, हर फ्रैक्शन पे, हर मिनट पे वो एक पीक देता जाता है और उसके डेटाबेस में पीक रहता है कि ये जो पीक है इतनी इंटेंसिटी वाला, तो वो पीक किस कंपोनेंट का होता है। तो उससे भी आपको पता चल रहा है कि ये पीक पे, ये फ्रैगमेंट में, इस लेवल पे 17वें मिनट के जो फ्रैक्शन जो जा रहा था, उस टाइम पे ये पीक मिला है और ये पीक किसका होता है उसके डेटाबेस में था। ये बहुत ही मैं एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ। तो वो ऑटोमेटेड मशीन आपको बता देगा कि भैया आप इस रैपिड टेस्ट में ये चीजें हैं। अभी आप कोई चीज लाते हैं, आप लाते हैं बाजार में से कोई चीज खरीद के, कोई एक्सट्रैक्ट लाते हैं नीम का एक्सट्रैक्ट, तो उसमें होता है इसमें एक्टिव हर्बल जो कोई मेडिसिन लाते हैं उसमें एक्टिव कंपाउंड कौन-कौन से होते हैं, नहीं होता। हम कई बार वो क्या कहते हैं, कोई भी लीफ का आप कंटेंट देखो तो आप गूगल करो तो उसमें आपको बताएगा हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी किया, हमने ये एनालिसिस किया और हमने पाया कि ये एक्सट्रैक्ट के अंदर ये होता है, विटामिन सी होता है, पॉलीफिनोल होता है, क्वेरसेटिन होता है, अल्कलाइड होते हैं, ये होता है, वो होता है। तो कैसे पता चलता है? तो ये सब करने के बाद पता चलता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ब्लाइंडली आपको अलग सेपरेट देगा, लेकिन अगर आपका हाईली ऑटोमेटेड मशीन है तो आपको अलग-अलग पीक मिलेंगे, फ्रीक्वेंसी मिलेगी, उसके ऊपर से आप पता लगा सकते हो, या तो फिर आपको उसको फर्दर एनालाइज करना पड़ेगा। आप उसके लिए सिंपल सा टीएलसी भी रन कर सकते हैं, आपको एक्सट्रैक्ट मिला, अब उसका टीएलसी रन करो, तो आपको कुछ और पता चलेगा। तो ये एक बहुत फंडामेंटल मैंने लो प्रेशर बताया है। हाई प्रेशर में यही टेक्निक होता है, प्रेशर से पूरा ज़्यादा प्रेशर से ये होता है तो रिज़ॉल्यूशन ज़्यादा मिलता है और एडवांस सोफिस्टिकेटेड वर्ज़न है, लेकिन इस कक्षा पे मैं इसको आपको सिर्फ सिंपल कॉलम क्रोमैटोग्राफी समझा रहा हूँ। तो इसका एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सेपरेशन जो होता है एक्सट्रैक्ट्स अलग-अलग उसमें कौन से कंटेंट है वो जानने के लिए, ये एक्चुअली प्रिपरेटरी मेथड है जो फर्दर स्टडी के लिए आपका ये आपको डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा है, आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। अगर एडवांस क्रोमैटोग्राफी आप यूज़ कर रहे हैं ऑटोमेटेड, तो आपको ये डायरेक्टली भी बता सकता है कंपाउंड कौन-कौन से हैं। ओके, तो ये आपका आइडिया हो गया एप्लीकेशन। अगर फिर से प्रिंसिपल पे आएँ, तो इसका प्रिंसिपल मैंने कहा था फिर से बात करूँगा। इसका मेनली प्रिंसिपल क्या है? सेपरेशन है। कौन से बेस पे? एफिनिटी बेस पे। एल्यूएन के साथ इसका कितना है? एल्यूएन के साथ क्या रिलेशन है? और इसके साथ क्या है? तो यहाँ पे किसके साथ इसका हुआ? अगर एडसॉर्बेंट के साथ, सिलिका के साथ इसका बॉन्डिंग जल्दी हो जाता है, वो मूव ही नहीं करता, उसको पोलैरिटी उसको उसका उसका पोलैरिटी बहुत कम है, वो मूव ही नहीं कर रहा, सिलिका के साथ चिपका रहता है। तो वो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका सेपरेशन उसका अफेक्शन स्टेशनरी क्रिस्टल के ज़्यादा है कंपेयर टू सोलवेंट सिस्टम। लेकिन तो यहाँ पे भी क्या होगा, इट्स अ सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल, इट इज सेपरेशन टेक्निक
where the separation is based on the differential, what do you call it? Differential affection, differential affection with the differential affection के लिए और एक अच्छा word आ रहा है, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा अभी. Differential affinity, affinity for the mobile phase and the stationary phase, and that is the main. Each component has own separation coefficient for both these things. And on that basis, the separation is taking place. तो फिर से मैं थोड़ा क्विक रिकैप करता हूँ. मैंने क्या किया, मैंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी आपको सिखाया. उसके लिए हमें क्या चाहिए, आपके लिए एक ड्यूट चाहिए. ड्यूट में आपको कॉलम प्रिपेयर करना है. कॉलम के लिए आप सिलिका यूज करोगे. सिलिका के एल्यूमिना भी यूज कर सकते हैं. एल्यूमिना के दो मेथड है, ड्राई मेथड, वेट मेथड. ड्राई मेथड डायरेक्टली आप उसमें पोर करेंगे. उसके पहले आपको एक स्टेप क्या करना है, सबसे पहले वूल रखना है, उसके पहले सैंड, बाद में सैंड रखना है. उसके बाद आपको स्लरी, वेट मेथड स्लरी प्रिपेयर करना है. सिलिका का घोल बनाइए, सोलवेंट सिस्टम में ही घोल बनाइए, घोल को डालिए. एक्स्ट्रा जो सोलवेंट है उसको निकाल दीजिए. आपका कंपाउंड पैक हो गया. टैप टैप थोड़ा सा बाहर से ठक ठक करते रहिए तो कोई एयर बबल ना रह जाए. उसके बाद ऊपर फिर से रेत डालिए, सैंड सैंड कॉलम. अब आपको क्या पोर करना है. अब आपको चाहिए सोलवेंट टू बी सेपरेटेड. आपका जो एक्सट्रैक्ट है प्लांट का वो लेके आइए. उसको आप पाइपेट करिए और पाइपेट से वॉल, ब्यूट की वॉल से डालिए. आपका ब्यूट की वॉल पे एक पूरा लेयर बन गया. कॉलम के ऊपर यहाँ पे सोलवेंट आपने अप्लाई किया, सॉरी मॉलिक्यूल्स टू बी सेपरेटेड आपने अप्लाई किए. उसके बाद आप रिजर्वायर लाइए या हाथ से ही कंटेंट डालते रहिए. थोड़े थोड़े उसको प्रेशर देते रहिए. सेपरेट होना स्टार्ट होगा. अलग अलग टाइम पे अलग अलग हर सेक्शन, हर मिनट में हर फ्रैक्शन को कलेक्ट करते रहिए. आपके टेबल में 50 फ्रैक्शन के ट्यूब हो सकते हैं. हर फ्रैक्शन का फर्दर एनालिसिस के लिए कर लिए जाइए. अगर कोई चीज सेपरेट नहीं हो रही है, सोलवेंट बदल डालिए. तो इस तरह से पूरा आपका ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऑपरेट होता है. होप you have enjoyed this video and you have understood the topic. Okay, I will provide the content also, and let me finish this.